طارق بن زیاد نے امامن کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنے قدموں سے اٹھایا اور پوچھا، تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے؟ امامن نے کہا، بلقیس۔ طارق بن زیاد نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا، تم لوگ تو ایسے نام نہیں رکھتے، پھر تم نے کس طرح یہ نام اپنی بیٹی کے لیے چنا؟ امامن نے طارق بن زیاد کا شیریں لہجہ دیکھ کر کہا، یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ بلقیس ایک خوبصورت خاتون تھی، میری بیٹی بھی بہت خوبصورت ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام بلقیس رکھا ہے۔ طارق بن زیاد نے نرم لہجے سے کہا، کیا تم کو علم ہے کہ بلقیس کو کہاں لے جایا گیا ہوگا؟ امامن نے کہا، مجھے ایک عیسائی سوار ملا تھا جو اتفاق سے ان سپاہیوں میں سے ایک تھا جو میری بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ اس نے میرے پوچھنے پر بتایا تھا کہ میری بیٹی کو ظالم بادشاہ راڈرک کی فوج کے سپہ سالار جس کا نام تدمیر تھا اس کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ طارق بن زیاد نے تلوار پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، تدمیر اس وقت کہاں ہوگا؟ امامن نے مسلمان سپہ سالار کا عزم اور جذبہ دیکھا تو کہا، وہ یہاں سے 5 میل کے فاصلے پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ رکا ہوا ہے۔ طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور کہا، میرے خیال میں آج ہم یہاں رک جاتے ہیں اور صبح سویرے نماز پڑھ کر تدمیر کے لشکر پر حملہ کر کے اس مظلوم کو انصاف دلاتے ہیں اور اس کی اغوا شدہ بیٹی کو رہا کروا کر اس کے حوالے کریں گے۔ اپنے سپہ سالار کی بات سن کر تمام مسلمان فوجی افسروں نے بھی اس تجویز کو مان لیا۔ پھر اسلامی لشکر نے ساحل پر رات گزاری۔ مسلمان لشکر اپنے ساتھ خیمے نہیں لائے تھے، اس لیے کھلے آسمان تلے سونے سے پہلے سپاہیوں نے کھانا تیار کیا جو پوری فوج کو اکٹھے پیش کیا۔ امامن بھی ان سپاہیوں میں بیٹھا کھانا کھاتے ہوئے حیران تھا کہ یہ کیسی قوم ہے جس کے بادشاہ اور غلام میں کوئی فرق نہیں، بلکہ سب لوگ ایک دسترخوان پر مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ تہجد اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتے دیکھ کر امامن کو مسلمانوں کا رات کو جاگ کر عبادت کرنا اور مل کر نماز پڑھنا بہت اچھا لگا تھا۔ اکٹھے رات گزارنے کے بعد اس کو اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ تمام مسلمان اپنی رات کا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں اور فضول بات چیت نہیں کرتے تھے۔ جو برائیاں دوسرے مذاہب میں تھیں ان کا نام و نشان ان میں کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر سب سپاہیوں نے کھجوروں کا ناشتہ کیا اور اپنے سالار کا حکم ملتے ہی اسلامی لشکر تدمیر سے امامن کی بیٹی کو آزاد کروانے کے لیے چل پڑا۔ تدمیر واقعی 5 میل کے فاصلے پر موجود تھا اور وہ کسی بھی حملے سے بے خبر اپنی مستی میں مگن تھا۔ تدمیر کا شمار اسپین کی فوج کے تجربہ کار اور مشہور جنرلوں میں ہوتا تھا جس نے کئی جنگوں میں اپنی بہادری اور ذہانت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کو اسلامی لشکر کی آمد کا علم بھی ہو گیا تھا، اس لیے اس نے جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے فوراً اسلامی لشکر پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور مسلمان فوجی ابھی ٹھیک طرح سے منظم نہیں ہو پائے تھے کہ ان پر اچانک حملہ کر دیا گیا، مگر انہوں نے نہایت دلیری اور جذبہ ایمانی سے تدمیر کی فوج کا مقابلہ کیا۔ اسپینی فوج کے مقابلے میں اسلامی لشکر کی تعداد بہت کم تھی۔ اسپینی فوج کی باری تعداد گھڑ سواروں کی تھی جبکہ مسلمانوں کے پاس کوئی گھوڑا نہیں تھا، وہ سب پیدل تھے۔ تدمیر کا ہر سپاہی لوہے کا جنگی لباس پہنے ہوئے تھا اور سب جنگی ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ادھر اسلامی لشکر کے پاس جنگی لباس تو کیا پورے ہتھیار بھی نہیں تھے، مگر ان کے دل میں جہاد کا جذبہ بھرا ہوا تھا۔ شہادت کے شوق میں وہ دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ جب دشمن ان کے سامنے آیا تو یہ شوق مزید بڑھ گیا۔ ہسپانوی فوج کے سالار کے حکم پر طبل جنگ بج گیا تو ان میں بھی ایک جوش آ گیا، مگر اس طبل جنگ کے جواب میں اسلامی لشکر نے ایک زبان ہو کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگائے تو اسپین کی زمین گونج اٹھی۔ عیسائی جنرل تدمیر نے بہت حقارت اور طنزیہ نظروں سے اسلامی لشکر کو دیکھا جو پیدل اور کم ہتھیاروں کے ساتھ اس کی بڑی فوج کے مقابلے پر کھڑا تھا۔ تدمیر نے سوچا کہ اس لشکر کو ختم کرنا تو بہت آسان ہے کیونکہ میری فوج اس چھوٹی سی فوج کو اپنے گھوڑوں تلے روند کر رکھ دے گی، ان کی لاشوں سے میدان بھر جائے گا۔ مگر تدمیر کی تمام تدبیریں بہت جلد غلط ثابت ہو گئی۔ جب مسلمان تیر انداز اور نیزہ باز سپاہیوں نے ہسپانوی فوج کے گھوڑوں اور سپاہیوں کو نشانہ بنا لیا، وہ پھرتی سے ان گھڑ سواروں کو زمین پر گراتے اور ان کے زخمی فوجیوں کو ان کے اپنے گھوڑے روننے لگے۔ اسلامی لشکر نہایت بہادری سے لڑ رہا تھا، دشمن کے قدم بری طرح اکھڑ گئے تھے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار طارق بن زیاد نہایت دلیری اور بے خوفی سے دشمن کی فوج میں گھس جاتے اور راستے میں آنے والے ہر دشمن کو تلوار کے وار سے ہلاک کر دیتے۔
दुश्मन ने कई मरतबा उन्हें घेरे में लिया, मगर वो फुर्ती से उनके नरगे से निकल आते और दुश्मन पर टूट पड़ते। जब तारिक बिन ज़ियाद और इस्लामी लश्कर नहायत जानबाजी से लड़ते हुए ईसाई जर्नैल तदमीर तक पहुंच गए तो वो तदमीर, जो जंग से पहले इस्लामी लश्कर को यकीन जान कर खुश हो रहा था, अब वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। जब अस्पानी सिपाहियों ने अपने जर्नैल को मैदान से भागते देखा तो उन्होंने भी मैदान छोड़ दिया और भागते खड़े हुए। इस्लामी लश्कर ने दूर तक उनका पीछा किया और मज़ीद सिपाहियों को ख़त्म कर दिया। इस लड़ाई में 1100 से ज़्यादा ईसाई मारे गए और सिर्फ 19 मुसलमान शहीद हुए। इस्लामी लश्कर से इबरतनाक शिकस्त के बाद ईसाई सिपाही तिनकों की तरह बिखर चुके थे। उनके खाली खेमों में से एक के अंदर बिल्किस रस्सियों में जकड़ी नज़र आ गई। इस्माइल ने आगे बढ़कर तेज़धार खंजर से उसकी रस्सियां काट दी और उसे आज़ाद करके खेमे से बाहर ले आया। बिल्किस ने जब अपने वालिद अमामन को देखा तो रोती हुई उसकी तरफ दौड़ी। अमामन भी अपनी इकलौती बेटी को आज़ाद देखकर खुश हो गया, मगर इससे पहले कि इस्माइल और अमामन बिल्किस को लेकर तारिक बिन ज़ियाद के पास जाते, अचानक खेमों में से तदमीर उनकी तरफ बढ़ा और बिल्किस को दबोच कर घोड़े पर सवार होकर खेमों की दूसरी तरफ भाग गया। क्योंकि इस्माइल और अमामन पैदल थे, वो ज़हनी तौर पर तदमीर के अचानक हमले के लिए तैयार भी न थे, इसलिए वो तदमीर का पीछा न कर सके और तदमीर बिल्किस को लेकर अपने बादशाह राड्रिक की तरफ चला गया। इस लड़ाई के बाद ईसाई फ़ौज के दिल में मुसलमानों का खौफ बैठ चुका था। वो सोचने लगे ये इंसान नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक है जिसने एक ताकतवर लश्कर से लड़कर उन्हें शिकस्त दे दी। इससे पहले कि तदमीर बादशाह के पास पहुंचता, उसने अपने बादशाह राड्रिक को कासिद के ज़रिए इस्लामी लश्कर की आमद की खबर दी। कासिद बिजली की तरह बादशाह के पास पहुंचा और तदमीर का पैगाम दिया। मुसलमानों की बहादुरी, स्पेन पर हमला और उनका बेखौफ लड़ना स्पेन के रहने वालों के लिए हैरान कौन था। स्पेन के रहने वालों को मुसलमानों के बारे में कुछ इल्म नहीं था। ये मुसलमान कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ कैसे पहुँचे, वो सब इस्लामी लश्कर को पुरअसरार मखलूक समझ रहे थे। उनको मज़हब इस्लाम के मुतालिक कुछ इल्म नहीं था। उनका जज्बा जिहाद भी उनके लिए बिल्कुल नया था। बादशाह राड्रिक और उसकी फ़ौज लफ्ज़ शिकस्त को जानते नहीं थे, इसलिए जब उसको तदमीर की शिकस्त का पता चला तो शदीद गुस्से में आ गया। उसने इस्लामी लश्कर का मुकाबला करने के लिए अपने मुल्क से 90,000 से ज़्यादा जंगी तजर्बा रखने वाले सिपाहियों को इकट्ठा किया और मुख्तसर से इस्लामी लश्कर के मुकाबले में ले आया। मूसा बिन नुसैर ने इस्लामी लश्कर की मदद के लिए जो 5,000 नए जवान रवाना किए थे, वो जिहाद के जज्बे से सरशार तो थे, मगर उनके पास भी मुकम्मल जंगी हथियार नहीं थे। अक्सर जवानों के पास तलवारें और ढालें नहीं थी, बल्कि अक्सर सिपाही तो आम लकड़ी की लाठियाँ लिए हुए थे। जबकि दूसरी तरफ राड्रिक की फ़ौज जो 1 लाख से ज़्यादा हो चुकी थी, उसका सारा लश्कर तमाम जंगी हथियारों से लैस था। लेकिन एक चीज़ इस्लामी लश्कर में उसके लश्कर से ज़्यादा थी, वो ये कि इस्लामी लश्कर जिहाद के जज्बे से और शहादत के शौक़ से सरशार था। जब दोनों लश्कर मैदान में आमने सामने हुए तो तारिक बिन ज़ियाद ने अल्लाह करीम के हज़ूर कामयाबी के लिए दुआ की और अपने सिपाहियों को मुखातिब करते हुए बोला, अल्लाह के सिपाहियों, तुम्हारी दलेरी और जिहाद का जज्बा देख कर हर एक हैरान है। मेरी ये बात याद रखना कि तुम सब अपने वतन से दूर एक अजनबी ज़मीन आए हो। खुराक और जंगी हथियार ना होने के बराबर है, मगर याद रखो हम यहाँ के रहने वालों को उनके जालिम बादशाह से निजात दिलाने आए हैं, ना कि हम यहाँ माल और दौलत इकट्ठा करने या खुराक जमा करने आए हैं। हमने अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानते हुए ये सफ़र किया है। तुम सबको याद होगा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि यहाँ आने से पहले मुझे सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई थी, जिसमें उन्होंने इस इलाके को फ़तह करने की बशारत दी थी। तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी तकरीर में कुरानी आयात का कई मरतबा हवाला दिया, बल्कि एक आयत का हवाला देते हुए कहा कि अल्लाह करीम ने अपने सिपाहियों के लिए फरमाया है, मुसलमानों की मदद करना हम यानी अल्लाह ताला पर फ़र्ज़ है। अजीम कौम के अजीम सिपाही और तुम ऐसी अजीम कौम की औलाद हो जिन्होंने ग़ज़वा बदर और हुनैन में अल्लाह ताला की मदद से फ़तह हासिल की थी। इसलिए अल्लाह के शेरों, दुश्मन पर टूट पड़ो, क्योंकि शहीद होना या गाजी बनना तुम्हारे मुक़द्दर में लिख दिया गया है। इस्लामी लश्कर ने अपने सिपहसालार का ईमान अफरोज़ जज्बा जिहाद से भरपूर खिताब सुना तो उन्होंने पुरजोश
हो कर नारे तकबीर बुलंद किया और ईसाई लश्कर की तरफ बढ़ने लगे। इतनी देर में उन्होंने देखा कि बादशाह रॉड्रिक एक खूबसूरत बग्घी जिस पर हीरे जवाहरात और सोने से बनी छतरी लगी हुई थी, बड़े गरूर के साथ रेशमी नरम गद्दे पर बैठा हुआ था। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने सिपाहियों की तरफ देखा कि कहीं कोई उनकी शान और शौकत के रौब में तो नहीं आ गया, मगर उसे ये देखकर खुशी हुई कि सारा लश्कर नफरत से भरी नज़रों से इसको देख रहा था। इतनी देर में ईसाई लश्कर इस्लामी लश्कर पर हमलावर हो गया। उनमें घोड़ों की लंबी कतार थी। वज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि ईसाई लश्कर चंद लम्हों में इस्लामी लश्कर को कुचल कर रख देगा। 1 लाख से ज़्यादा दुश्मन का मुकाबला करने के लिए सिर्फ 7-8 हज़ार मुसलमान आटे में नमक के बराबर थे। ईसाई लश्कर की सफ़ें दूर तक बिछी हुई थी। अगर हिसाब लगाया जाता तो दोनों लश्करों में 1 और 10 का फ़र्क था, यानी 10 ईसाइयों का मुकाबला करने के लिए 1 मुसलमान था। जब जंग शुरू करने का ऐलान हुआ तो तारिक बिन ज़ियाद ने एक बार फिर अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदे रेज़ होकर कामयाबी की दुआ की और मदद करने की दरख्वास्त की। फिर सजदे से सर उठाकर उसने 3 बार नारा तकबीर बुलंद किया। इस्लामी लश्कर भी अल्लाह अकबर कहकर अपने जज्बे से आगाह किया तारिक बिन ज़ियाद को। तारिक बिन ज़ियाद ने ईसाई लश्कर का मुकाबला करने के लिए अपनी फ़ौज को मज़ीद आगे बढ़ने का हुक्म दिया। ईसाई बादशाह रॉड्रिक अफरादी क़ुव्वत और भारी असला रखने के गरूर से मुसलमानों पर हमलावर हो गया। दोनों तरफ से खूब जोश से जंग जारी थी। जंग में दोनों तरफ से भरपूर हमले किए जा रहे थे और उन हमलों का मुकाबला किया जा रहा था। मैदान जंग भी खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा था। होता यूँ था कि जब एक मुसलमान सिपाही दुश्मन के सिपाहियों पर तलवार जनी करता तो उसके वार से 6-7 ईसाई फ़ौजी मारे जाते। बज़ाहिर देखने में ईसाई फ़ौज मुसलमानों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह करीम ने अपने सिपाहियों के लिए फरिश्ते ज़मीन पर भेज दिए थे जो मुसलमान सिपाहियों का मुकम्मल साथ दे रहे थे। शाम तक मैदान जंग का नक्शा बदल चुका था। ग़ज़वा बदर की तरह इस जंग में भी मुसलमानों ने फरिश्तों का साथ मिलने से कुफ़ार को बुरी तरह शिकस्त दे दी। अल्लाह ताला का शेर काफिर गिरदड़ों को इबरतनाक शिकस्त दे चुका था। जालिम बादशाह रॉड्रिक मैदान जंग से भाग गया। इस्लामी लश्कर ने भागते हुए ईसाई लश्कर का पीछा किया। कुफर के खिलाफ तारिक बिन ज़ियाद को एक बड़ी फतह नसीब हो गई। तारिक बिन ज़ियाद ने रॉड्रिक के कब्ज़े से मजलूम लड़कियों को आज़ाद कर दिया और इस दौरान में उसे रॉड्रिक का जमा किया हुआ बहुत भारी मिकदार में ख़जाना भी मिला। जालिम रॉड्रिक को शिकस्त होने के बाद पूरे अफ्रीका और यूरोप में मुसलमानों ने धूम मचा दी, जबकि ईसाइयों के हौसले ख़त्म हो गए और वो किसी भी मैदान में इस्लामी लश्कर का डट कर मुकाबला न कर सके। फिर वो दिन भी आ गया जब तारिक बिन ज़ियाद को मिलने वाली बशारत हकीकी बन गई और पूरा अंदलस यानी स्पेन अहले ईमान के कदमों तले था। स्पेन की फतह के बाद स्पेन के मशहूर शहर कुर्तबा को दारुल खिलाफा बना दिया गया। वहाँ एक आलीशान मस्जिद भी बनाई गई। तारिक बिन ज़ियाद ने पूरा स्पेन फतह करने के बाद मूसा बिन नसीर को पैगाम भेजा कि अब उसे पूरा यूरोप फतह करने की इजाज़त दी जाए। मूसा बिन नसीर ने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक को पैगाम भेज दिया, मगर उन्होंने हुक्म फरमाया कि तुम स्पेन के इंतज़ामात किसी को सौंप कर तारिक बिन ज़ियाद के साथ अफ्रीका के रास्ते दमिश्क आ जाओ। मूसा बिन नसीर ने खलीफा के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे अब्दुल अजीज़ को स्पेन का गवर्नर बनाया और तारिक बिन ज़ियाद के साथ दमिश्क की तरफ चल पड़ा। मगर तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर जब दमिश्क पहुँचे उसी वक्त खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक फ़ौत हो गए, इसलिए इन दोनों को ये इल्म ना हो सका कि खलीफा ने इन दोनों को किस लिए दमिश्क बुलाया था। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक की वफ़ात के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा बने तो उन्होंने हर शख्स के साथ दुश्मनी पाल ली। मूसा बिन नसीर और तारिक बिन ज़ियाद को भी खलीफा के इंतकाम का शिकार हो गए। खलीफा ने इन दोनों को गिरफ़्तार करके कैद कर लिया। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का दौर हुकूमत अजीम मुस्लिम फ़ातिहीन के लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। ऐसे मुस्लिम फ़ातिहीन जिनका नाम तारीख़ में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखा जाता है, वो सब इस दौर में नहायत नारवा सलूक का शिकार हो गए। गवर्नर खुरासान फ़ातिह कुतैबा और मोहम्मद बिन कासम जैसे अजीम मुस्लिम फ़ातिहीन भी खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के मुजरिम ठहरे और खलीफा ने मूसा बिन नसीर के बेटे को भी स्पेन की गवर्नरी से हटा दिया कि कहीं वो अपने बाप का बदला लेने ना आ जाए। तारिक बिन ज़ियाद के आखिरी दिनों के हवाले से मौरिखीन खामोश हैं, मगर चंद जगह पर तारिक बिन ज़ियाद के इंतकाल की तारीख 11 अप्रैल 720 हिजरी दर्ज है।
اسپین، جس کو اندلس بھی کہا جاتا ہے، اس پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی اور آخر نہایت افسوسناک طریقے سے انہیں وہاں سے نکلنا پڑا، مگر اسپین کے فاتح طارق بن زیاد کے کارناموں سے مسلم فاتحین کی تاریخ ہمیشہ جگمگاتی رہے گی۔